कल वाले में पूछना है कुछ? नहीं। रूट स्टेम में क्वेश्चन किया था आपने? हाँ। सारे बन रहे हैं रूट स्टेम से? सारे सॉल्व हो रहे हैं? ओके, तो ठीक है। Sorry. अब हेडिंग दे दो आप लीप का। लीप लीप जनरली 3 पार्ट्स। अब पता ही है, ये नीचे वाला जो है लीप बेस है, ये पेटियोल है, और ये है लेमिना। तो लीप डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। लीप बेस, that is called hypothorium. The part of leaf attached to the site of the leaf base, इसको बोलते हैं leaf base. हाइपोपोडियम, देख लो हाइपोपोडियम, ये फिगर है लीफ का, एक बार देख जाओ, आता ही होगा जो ज्यादा। ये सिंपल है, ये है लीफ बेस, that is called hypanthorium. This is petiole, that is called mesopodium. This is lamina, that is called epipodium. The leaf base, that is called petiole, you can see in the figure, that is connecting the lamina to the leaf base, that is petiole. Write down the another name of petiole, that is called mesopodium. The part of the leaf connecting to lamina with the branch of stem is known as petiole. अब इसमें दो पार्ट आप लिखेंगे। Some plant where petiole are found, that is called petiolate leaf. In figure number A, green color. Some plant where petiole or stalk is absent, that leaf is called sessile leaf. Figure number B. Sessile. So when sessile leaf, when sessile means when stalk is absent or petiole is absent, that condition is called sessile. The petiole or stalk leaf are known as petiolated leaf. When petiole or stalk is absent, then leaf is called sessile. Clear? Yes, sir. Next one, lamina, that is also called leaf blade or epipodium. It is a broad and flattened part of the leaf. The main function is photosynthesis and transpiration. इसके कुछ पार्ट है, जैसे कि मार्जिन होता है, वेन होता है, जैसे ट्रांसपिरेशन होता है, बीच का एक मिड लीफ दिख रहा होगा और लीफ एपेक्स दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया लेमिना। तो लेमिना इज द मेन पार्ट ऑफ द लीफ, साइट फॉर photosynthesis as well as transpiration. Clear? So write down lamina, other name is leaf blade or epipodium.
Now some other part that is called bract and bracteoles. What is the bract and bracteoles? The bract are leaves which contain flower in the axis. You can see here. Are leaves which contain flower in the axis. Example, write down China rose. What is called bracteoles? These are leaf-like structure found on the pedicel. You know pedicel? फ्लावर स्टॉक को बोलते हैं हम लोग पेडिसेल, और पेडिसेल पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जब फाउंड होता है दैट इज कॉल्ड ब्रैक्टियोल्स. द डिफरेंस बिटवीन ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल, राइट डाउन. Bracts are leaves which contain flower in their axis. You can see in the figure. Example in China rose. Bracteoles, these are leaf-like structure found in pedicel. Example in Malvaceae family. Malvaceae, example China rose, and all these things are found in that. One thing more you have to write, that is called stipule. What is the stipule? You have to write Stipule. stipule. Heading stipule. Some leaves of some plant have lateral appendages on either side of leaf base, known as stipule. Star here, leaf with stipule, known as stipulated leaf. Example, the family, common family, pulse family, Fabaceae family. And leaf without stipule is called
X stipulated leaf. Example in the case of family Solanaceae, as well as Liliaceae. As well as Liliaceae. As well as Liliaceae. Clear? So some leaf which have the stipule, some leaf don't have the stipule. Those don't have the leaf called stipulated leaf. Now, some types of leaf. You can see right types of leaf. Types of leaf. First one is cotyledonary leaves. Cotyledon. So नेम सजेस्ट है कि ये लीफ कब कम होगा, जब जर्मिनेशन ऑफ सीड होगा. जब सीड जर्मिनेट करता है तो फर्स्ट लीफ जो आएगा, दैट लीफ इज कॉल्ड cotyledonary leaves. So that is called cotyledonary leaves. क्या होता है? Write down. These leaves come out during germination of seed. और ये हेल्प करता है न्यूट्रिशन का. ठीक है, ये किस किस में मिलता है? ये cotyledonary leaves. Write down. Example: tamarind. Tamarind, you know, Emily? Tamarind and castor में मिलेगा ये cotyledonary leaves. Castor. सेकेंड वन कल मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि बार बार जिक्र आ रहा था क्या? स्केली लीफ. हाँ, स्केली लीफ. तो कल कुछ बताया था, याद है? व्हाट इज कॉल्ड स्केली लीव्स? जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करता था. पार्ट हाँ, नहीं एग्जैक्टली. राइट. गुड. So write down such leaves are usually dry membrane, and they cannot perform photosynthesis. Obviously इसका कलर क्या होना चाहिए रावी? If that leaf does not take Yellow. part in the
हाँ, तो नॉन ग्रीन होगा, ग्रीन के छोर के कलर होता है, कलरलेस टाइप का। तो ये कल बताया था एग्जाम्पल में जिंजर। और कल ही मैं डिस्कस किया था, दैट इज fleshy leaves. फ्लैशी लिप्स, foliage लिप्स। बार बार रहा था कि सम लिप्स आर कॉल्ड foliage लिप्स। तो foliage लिप्स की क्या होता है वो लिख लें आप। They are usually green color, lips, और ऑब्वियसली है कि that take part in photosynthesis। ये टाइप्स ऑफ सम लीव्स हो गए, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ लीफ, स्केली लीव्स, foliage लीव्स एंड कोटिलिडनरी लीव्स। ठीक है, Hairy leaves. अब आ जाते हैं हम लोग क्या, तो टाइप्स ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में कल के टॉपिक से वापस आते हैं। फिर से स्लाइड। तो हेडिंग 2, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाला है, इस बार भी पेपर में क्वेश्चन था, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड कॉल मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। तो लीफ मॉडिफाई करके टेंडिल बनाता है, लीफ स्पाइन बनाएगा, लीफ स्केल बनाएगा, लीफ पिचर प्लांट होगा, लीफ ब्लाडर होगा, लीफ हुक्स होगा, फाइलोड होगा, लीफ लेट टेंडिल्स। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी है लीफ टेंडिल। कल के क्लास में मैंने बताया था स्टेम टेंडिल्स, और ये लीफ टेंडिल्स है। स्टेम टेंडिल का एग्जांपल बताया था गॉड फैमिली, याद करना, गॉड फैमिली, वाटरमेलन Grapevine, वगैरह, grape. हाँ, ग्रेप वाइन, ऑल दिस थिंग। वन क्वेश्चन आस्क योर पेपर कि लीफ टेंडिल का एग्जांपल बताएं। तो लीफ टेंडिल का एग्जांपल होता है पी, मटर, एंड वाइल्ड पी, लेथारस अपाका। The some plant whole leaf is modified into wire-like structure is called leaf tendrils. Wire-like structure you can see in the figure already given. The example write down कर लो, peas, Pisum sativum, as well as Letharus apaca, wild pea, जंगली पी। दोनों में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज लीफ टेंडिल। Tendril. हाँ, लीफ टेंडिल। The difference between the stem tendril and leaf tendril. The stem tendril example is the most of the gourd family, grapevine and all these things. And leaf tendril will be the wild pea For example, and Lethal, peas. Paka, and Letharus apaca, all these things. अब है लीफ स्पाइन, वहां पे था स्टेम स्पाइन, स्टेम थॉर्न था। अब यहाँ पे है लीफ स्पाइन्स बनाता है। तो सम लीफ मॉडिफाइड टू द पॉइंट स्पाइन, दैट इज अपंसिया, कैक्टिस एंड आर्जीमून। इसमें वहां पे देखा वो फाइलोक्लेट बनता है, वो लीफ ही स्ट्रक्चर फाइलोक्लेट बनाता है, इसको लीफ स्पाइन बोलते हैं। लीफ मॉडिफाइड इनटू द पॉइंटेड स्पाइन एज केसम, ओपनसिया, कैक्टिस, आर्जीमोन। राइट डाउन लीफ स्पाइन। लीफ स्पाइन
लीफ पिचर प्लांट, बताया था कि पिचर प्लांट होता है जो कि न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से लेता है, पिचर लाइक स्ट्रक्चर जो कि न्यूट्रिशन होता है, नाइट्रोजन लेता है. The leaf of the some plant modified into pitcher shaped structure. You can see in the pitcher like it. किस किस में होता है? Nepenthes. Write down the example Nepenthes and this dia. Both are example of the leaf pitcher plant. लीफ ब्लाडर, ब्लाडर वर्ड नाम ही हो जाएगा, याद रखना है. लीफ ब्लाडर, ब्लाडर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इटिकुलरिया बोलते हैं कॉमन नेम, और इसका कॉमन नेम है ब्लाडर वर्ट. सम प्लांट लीफ इज मॉडिफाइड इनटू ब्लाडर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लाडर वर्ट, इटिकुलरिया. ये ब्लाडर वर्ट क्या होता है? ये इक्वेटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है. इक्वेटिक होता है, वाटर में होता है. इक्वेटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट. Aquatic insectivorous plant, bladder wort. Phylloid, तो डिफरेंस याद रखना. Phylloclade, the example will be the Aponcia cactus and all. हाँ, when phylloid will come, it is leaf modification. Phylloclade will come, it is the stem modification. So some plant petiole become plate-like structure and function normally. Photosynthesis unit में. Example है Australian acacia. Example must noted for that. Phylloclade, here phylloid. Another example you can also write Parkinsonia. Parkinsonia. Both are example of phylloid. Australian acacia as well as Parkinsonia. Now write down one thing, you have to also write here leaflet tendril. Write down heading में leaflet. First is the leaf tendril. Here the leaflet tendril. Some plant leaflet is modified into the tendril. इसका एग्जाम्पल होता है गार्डन पी, स्वीट पी. गार्डन पी एज वेल एज स्वीट पी. Now types of leaf. Simple leaf and compound leaf. First you can see the figure. Simple leaf किसको बोलेंगे? A leaf which may be in size up to any depth but not up to the midrib. दिख रहा होगा आपको फिगर में कि कोई भी डेप्थ तक है लेकिन नॉट इन साइज अप टू द मिडरिप और पेटियोल इज कॉल्ड सिंपल लीफ. पीपल, मैंगो, रेडिस को बोलते हैं सिंपल लीफ. दूसरे फिंगर में कंपाउंड लीफ है, इन साइज अप टू द मिडरिप है और लिफलेट में तब्दील हो गया, बाइफरकेट कर गया. तो पहला लिखेंगे आप सिंपल लीफ क्या होता है. द लीफ व्हिच मे बी इन साइज टू द एनी डेप्थ बट नॉट अप टू द मिडरिप और पेटियोल is called simple leaf.
कंपाउंड लीफ क्या होता है? लीफ which leaf blade is in size up to midrib और petiole, हाँ obviously। तो ये स्मॉल पार्ट हो जाता है, उसको लीफलेट बोलते हैं। अब ये 2 टाइप का होगा, वन इज पिनेटली लीफ, अदर इज पामेटली कंपाउंड लीफ। ये दोनों लिखने हैं आप, पिनेटली कंपाउंड लीफ एज वेल एज पामेटली कंपाउंड लीफ। Pinnately and palmately. Yes, sir. अब राइट डाउन देखिए, पिनेटली कंपाउंड लीफ के भी डिफरेंट टाइप होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ लीफ मिड लीफ इज नोन एज रेचिस। देखो ये रेचिस है, ये बार बार पेपर में आता है। ये कॉमन मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? रेचिस। एंड लीफलेट अरेंज ऑन दी बोथ साइड ऑफ रेचिस। तो लीफलेट अरेंज है बोथ साइड ऑफ रेचिस। तो इसमें हो जाता है यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट, डीकम्पाउंड, 4 टाइप्स। ठीक। Yes, sir. नाउ अब तुम्हें प्रॉब्लम होता है कि यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट और डीकम्पाउंड का पेपर में कैसे एग्जांपल याद रखें, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं तुम्हें फार्मूला देता हूँ। फार्मूला क्या है कि दिल्ली का टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना चाहती हो और एम्स के बाद कौन सा है? मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, MAMC। हम यहाँ पे M को रिप्लेस करके NAMC करने वाले हैं। तो रिमेम्बर NAMC। The formula will be your NAMC. So NAMC, right? So यूनिपिनेट का एग्जाम्पल होगा N फॉर नीम, इन हिंदी N फॉर नीम। तो यूनिपिनेट का याद हो गया, अच्छा NAMC है, N फॉर नीम कर दिया, याद हो गया। बाइपिनेट का एग्जाम्पल है A फॉर अकेशिया, अकेशिया, बाइपिनेट अकेशिया। ट्राइपिनेट that is M for मोरिंगा, जिसको कॉल्ड ड्रम स्टिक। आप बिहार के हो तो आपको पता होगा ड्रम स्टिक क्या होता है। सहजन, सहजन खाते हो, लंबे लंबे से, नहीं जानते हो? सहजन होता है, इसको हिंदी में सहजन बोलते हैं। सहजन की सब्जी बनती है अपने यहाँ, ज्यादा बोलते हैं उसको। ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे बराबर। और C फॉर कोरिएंडर, धनिया। तो each and every example of the pinnately leaf cover from a simple formula, that is NAMC. That is neem, acacia, moringa, coriander. हाँ, moringa, coriander. तो यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट, डीकम्पाउंड। अब ये स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है, यूनिपिनेट कैसा है, वो देखो आप, तो आपको क्लियर समझ में आएगा।
देखो ये यूनिपिंडेट दिख रहा है आपको, एक ही है। एग्जाम्पल भी बताया मैंने, नीम लिख दिया। तो दिस टाइप ऑफ लीफ डिवीजन अकर ओनली वंस इन लीफलेट, एक एक के साथ एक है, तो इसलिए यूनि मतलब वन। दूसरा फिगर आप देखें, बाइपिन्नेट, जिसका एग्जांपल मैंने बताया अकेशिया, एक ही एग्जांपल। इसके अलावा भी एग्जांपल चाहो तो लिख लो, गुलमोहर एंड माइमोसा पुडिका, जिसको हम छुई मुई बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट। हाँ। टच मी नॉट प्लांट का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अब इसको जब गौर करोगे तो ये एक कॉमन रेसिस है, इसको हम प्राइमरी रेसिस बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। You can say that it is, हाँ, secondary axis, very good. Secondary axis is called. उसी तरह से ट्राइप पिन्नेट आएंगे तो उसमें टर्सरी रेसिस आ सकता है, ठीक है। तो दैट इज बाई पिन्नेट। बाई पिन्नेट क्यों बोला कि एक एक के साथ दो दो लगा हुआ, दो दो है, हर एक के साथ दो दो है, इसलिए बाई, दैट इज कॉल्ड बाई पिन्नेट, ठीक है। और उधर क्या था, वन के साथ वन था, इसलिए उसको यूनी पिन्नेट बोला। इधर एक के साथ दो है तो उसको बाई पिन्नेट बोला। अब ट्राई पिन्नेट देखो, ठीक है, ट्राई पिन्नेट। तो ट्राइस पिन्नेट लीफ क्यों बोला? क्योंकि एक जो रोएसिस है उसके साथ तीन तीन जुड़ा हुआ है, तीन 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 तीन, इसलिए इसको हम तीन पिन्नेट जुड़ा हुआ, इसलिए हम ट्राइस पिन्नेट कंपाउंड लीफ को हम बोलते हैं ट्राई पिन्नेट। इसी मोरिंगा मतलब, हाँ, इसको बोलते हैं ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक, दैट इज मोरिंगा ड्रम स्टिक। एवरीथिंग क्लियर? यस सर। फोर्थ देखो, डी कंपाउंडेड, इसका कोई शेप ही नहीं है, मोर देन थ्राइस, यानी तीन से ज्यादा यदि कोई बनना है, दिख रहा होगा, तीन से ज्यादा दिख रहा होगा आपको, इसको हम डी कंपाउंड बोलते हैं। तो ये आपको धनिया का पत्ता लगभग ऐसा ही होता है, कोरिएंडर, और कैरेट में भी ऐसा ही होता है। तो यू कैन आल्सो ऐड द एग्जांपल ऑफ द डी कंपाउंडेड हियर, दैट इज कैरेट। सो कैरेट एंड कोरिएंडर बोथ आर एग्जांपल ऑफ डी कंपाउंड। तो फिर से आप लोग फार्मूला रिवीजन कर ले। क्या फार्मूला था? MAMC, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में, हाँ, यूनिपिन्नेट नीम, बाइपिन्नेट एकेशिया, ट्राइपिन्नेट मोरिंगा, डी कंपाउंड कोरिएंडर, राइट? यस सर। नाउ टाइप्स ऑफ palmetly leaf, palm like स्ट्रक्चर होगा, दैट्स व्हाई कॉल्ड palmetly leaves। तो palm like स्ट्रक्चर को बोलते हैं palmetly के 5 टाइप्स हो गए, यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, टेट्राफोलिएट, मल्टीफोलिएट। तो यूनि मतलब एक, बाय मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, पेंटा, मल्टी मतलब मोर देन 4। सो दैट इसके लिए भी मैं फार्मूला देता हूं आपको, इसके लिए फार्मूला दे रहा हूं, ओ बम, ओ बम, ओ बम, ओ बम, ओ बम, नहीं से अचानक से बम देखा, ओ बम। सो ओ स्टैंड्स फॉर, यूनिफोलेट का एग्जांपल, ओ स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, O stands for orange. B stands for
गोल्डन फ्लावर इट इज कॉल्ड बोइनिया। कभी आप राष्ट्रपति भवन गए होंगे, इसके पौधे बहुत हैं वहां पे, प्लांट्स, बोहिनिया। वहां पे मुगल गार्डन है, बोहिनिया। हाँ, इसको बोलते हैं गोल्डन कलर का फ्लावर होता है। अभी दिखाता हूँ, फ्लावर भी दिखाता हूँ, पीपीटी है हमारे पास। दैट इज कॉल्ड गोल्डन फ्लावर। बाइफोलिएट, बोहिनिया। ट्राइफोलिएट, ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस, ट्राइफोलिएट, ऑक्जेलिस। टेट्राफोलिएट, मार्सिलिया। और मल्टीफोलिएट, बी वोक्स, बॉम्बेक्स। बॉम्बेक्स मतलब कौन से प्लांट को बोलते हैं बॉम्बेक्स? मोरी। हाँ, सिल्कॉट। तो फॉर्मूला क्या हो गया? ओबोम। ओबोम। O for orange, unifoliate. B for bohemia, bifoliate. O for oxalis, trifoliate. M for marsilia, tetrafoliate. And B for bombex, multifoliate or digitate. Right? Yes, sir. Now see each and every figure for that. So you can see unifoliate. In this type, single leaflet is present at the tip of the petiole, not up to incision of the petiole. So मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था? ऑरेंज और लेमन एक ही फैमिली का आता है, तो लेमन भी सिट्रस फैमिली है, ऑरेंज भी सिट्रस फैमिली है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफोलिएट का एग्जाम्पल। बाइफोलिएट में दिख रहा होगा दो है, तो एग्जाम्पल मैंने बताया बोहिनिया, रेगनी लीडियम भी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जनरली नहीं पूछता, बोहिनिया तक ठीक है। थर्ड है ट्राइफोलियम, ये तीन तीन दिख रहा होगा आपको, तीन तीन है सब में, ट्राइफोलियम। तो ऑक्जेलिस बताया आपको एग्जाम्पल। फोर्थ है टेट्राफोलिएट, in the diastole leaflet are attached to petiole tip, that is called marsilia. And marsilia, or last one is multifoliate or digitate, that is bombex, silk cotton, bombex, silk cotton, that is called 4-5 types of multifoliate। ये आप क्लियर हो गया सारा? Yes, sir. याद भी हो गया आपको सारा? दोनों? Yes, sir. दोनों का फॉर्मूला ये आपने रट लिया। Yes, sir. ये आपके लीफ के कुछ पॉइंट्स हुए। अब हम आ जाते हैं जो एनसीईआरटी से पूछता है, अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द लीफ एक्सिस, Phyllotaxy. दैट इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। राइट, वेरी गुड। तो फिलोटैक्सी बोलते हैं। तो फिलोटैक्सी पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम ब्रांचेज। इसके 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज अल्टरनेट, opposite and whole. Right? Yes, sir. So each node bear each leaf, that in the case of the alternate. Each node bear 2 leaves, that is case of the opposite. Opposite. Whenever the whole of the flowers, group of the leaves are arranged in one way, other is the opposite to that, that is called whole leaves. तो 3 पैटर्न होते हैं, जो दिख रहा होगा फिगर में, 3 पैटर्न। डायरेक्ट एनसीईआरटी, नथिंग विल बी चेंज।
तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है। अल्टरनेट, तो इसको फॉर्मूला है मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर। मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर। Yes, sir. तो इसको आप एमएससी याद रखेंगे, एमएससी डिग्री होता है एमएससी। Yes, sir. एम फॉर मस्टर्ड, एस फॉर सनफ्लावर एंड C for सी फॉर China. चाइना रोज। इससे चाइना रोज, तो फॉर्मूला विल बी एमएससी, एमएससी, एमएससी। अब इसमें भी क्या होता है कि कुछ सिक्वर इंपोज होता है, कुछ डिकॉस्टेड होता है। दूसरा जो अल्टरनेट फॉर्म है, when pair of the leaf extend directly over the lower pairs, that is in the guava, and दूसरा अपोजिट का एग्जांपल दोनों कर दिया है, और each pair of the leaf extend to right angle to next one is called डिकॉस्टेड बोलते हैं। तो आप याद रखो, सिंपल याद रखो, अपोजिट, ईच नोड से दो लीव्स राइज करेंगे, अपोजिट टू ईच अदर। इसके लिए फॉर्मूला है गुआवा एंड केलोटोपिस, एग्जांपल है एनसीईआरटी में भी है। एक गुआवा है, एक केलोटोपिस है। इसके लिए फॉर्मूला लिख लो, हिंदी में दिया हो, हिंदी में बनाया मैंने। तो क्या हिंदी में बनाया, गोरा एंड काला, जी फॉर गोरा, सी फॉर काला। गोरा एंड काला आर ऑलवेज अपोजिट, गोरा एंड काला आर ऑलवेज अपोजिट। याद हो गया, जी फॉर गुआवा गोरा, Yes, sir. सी फॉर केलोटोपिस काला, आर ऑलवेज अपोजिट। अब है थर्ड पॉइंट इज होल्ड। इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज ईच नोड, यदि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लीफ ईच नोड से राइज करता है, दैट केस इज कॉल्ड होल्ड। और ये एस्टोनिया डेबिलिटी एनसीईआरटी का ही है। दूसरा मैंने ऐड कर दिया नेरियम, जिम्नोस्पर्म। तो दोनों एग्जाम्पल पूछेगा पेपर में, होल्ड का बताओ, तो नेरियम। तो हो गया फॉर्मूला, पहला एमएससी दे दिया, मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर। ये हो गया तुम्हारा अल्टरनेट का एग्जाम्पल। दूसरा है गोरा एंड काला, ऑलवेज अपोजिट। हाँ बिल्कुल। और थर्ड है होल, ऑस्टोनिया एंड नेरियम। हाँ, ऑस्टोनिया एंड नेरियम। तो ये आपका हो गया, ये लगभग लीप में। वन थिंग आई थिंक लेफ्ट आई शुड, that is arrangement of vein and veinlet. It is called venation, right? Yes, sir. So write down arrangement of the vein and veinlet called venation. क्या इसमें राइट डाउन करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ
veins and veinlets. Example, you know all first one you have to write reticulate venation. Reticulate venation. तो ये कैसा होता है? नेटवर्क ऑफ दी हो जाएगा। रेटिकुलेट मतलब क्या होता है? नेटवर्क हो जाता है। नेटवर्क। इस तरह से बनाएंगे आप, नेटवर्क बनाएंगे आप, ऐसे 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 ऐसे, तो नेटवर्क ऑफ दी वेनेशन हो जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ दैट डाइकोट, ऑल डाइकोट प्लांट है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल होता है ऑल डाइकोट प्लांट। अब पूछेगा ऐसा डाइकोट प्लांट बनाओ जिसमें पैरेलल वेनेशन हो। तो इसका एग्जाम्पल होता है, एक्सेप्शन ये हो गया, एक्सेप्शन। इसके लिए भी फॉर्मूला दूंगा मैं, केलो फाइलम। केलो फाइलम में कौन सा वेनेशन है? तो डाइकोट। इसमें कौन सा वेनेशन है? पैरेलल। ये पूछता है कैसा डाइकोट प्लांट बना हो जिसमें पैरेलल वेनेशन हो। तो इसके लिए मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ, फिजिक्स में बहुत फेमस बुक है इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो कौन सा बुक है? डीसी पांडे। तो आपको क्लियर हो गया फार्मूला? डी फॉर डाइकोट प्लांट, सी फॉर केलोफाइलम और पी फॉर पैरेलल वेनेशन। मतलब those plant which dicot but must have the parallel venetion, so formula will be a DC Pandey. दूसरा है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में अरेंजमेंट पैरेलल होगा, पता ही आपको। हाँ, पैरेलल ही होगा, ऐसे ऐसे पैरेलल करना। तो एग्जांपल जनरली पैरेलल वेनेशन के क्या होते हैं? मोनोकोट, यस, मोनोकोट प्लांट्स।
तो इसके एग्जाम्पल, इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, इसके एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन राइट डाउन करिए। क्या? स्माइलेक्स, हाँ, और इसमें क्या है? रेटिकुलेट वेनेसन। जनरली होता है पैरेलल, लेकिन कुछ ऐसे मोनोकोट हैं जिसमें रेटिकुलेट वेनेसन है। articulate. तो इसके लिए फॉर्मूला बनाता हूं, एम एस, तो एम एस तो ध्वनि हो गया, एम एस रोनी कर देता हूँ, एम एस रोनी, तो एम एस रोनी, तो एम फॉर मोनोकोट, एस फॉर स्मॉलेक्स, आर फॉर रेटिकुलेट। तो मोनोकोट में स्मॉलेक्स ऐसा प्लांट है जिसमें रेटिकुलेट वेनेसन है। Sir. तो आपके ये लीप सारे क्लियर हो गए। लीप के जितने भी डाउट थे, जितने भी पॉइंट होते हैं, जहां तक पेपर में आ सकते हैं, एवरीथिंग विल बी क्लियर। सो लीप क्लियर हो गया। तो लीप में कुछ पूछना है तो अब बताओ, पूरा लीप एक बार देख लो। मैं चालू कर देता हूँ। सर ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स नहीं समझ आया। ब्रेक क्या होता है? जब ब्रेक्ट आर लीव्स होता है विच कंटेन फ्लावर इन देयर एक्सिस, उसके एक्सिस में फ्लावर होता है तो उसको हम ब्रेक बोलते हैं। जैसे ये है, अब ये एक्सिस में कभी कभी फ्लावर होता है, इसको छोटे छोटे एक्सिस, तो इसको बोलते हैं ब्रेक्ट। तो ब्रेक्ट आर लीव्स विच कंटेन फ्लावर इन देयर एक्सिस, एक्सिस में फ्लावर होगा तो उसको बोलेंगे ब्रेक्ट, राइट। और ब्रैक्टियोल्स कब को बोलेंगे? जैसे ये फ्लावर है और ये इसका पेडिसिल होता है, ठीक है, इसको स्टॉक ऑफ द फ्लावर बोलते हैं। जब फ्लावर बताऊंगा तो इसको बोलते हैं पेडिसिल, स्टॉक ऑफ द फ्लावर। तो दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन पेडिसोल। जब लीफ लाइक स्ट्रक्चर जब यहाँ पे पेडिसिल पे फाउंड होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रैक्टियोल्स। ठीक, राइट। यस सर। मतलब लीफ के एक्सिस पे यदि फ्लावर है तो उसको हम ब्रेक बोलेंगे, और फ्लावर के पेडिसिल पे यदि लीफ है तो हम उसको ब्रैक्टियोल बोलेंगे। क्लियर? सर लीफ टंडिल, लीफ स्पाइन, लीफ पिचर प्लांट, लीफ ब्लाडर, फाइलोड, सिंपल लीफ, टाइप ऑफ सिंपल लीफ, टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ, टू टाइप, पिनेटली, पामेटली, यूनिपिनेट, बाइपिनेट, डाइपिनेट। हाँ, ये सारा फॉर्मूला बताया आपको।
तो लीप में आपका हो गया। अब हम लोग आएंगे इनफ्लोरेसेंस में। इनफ्लोरेसेंस उसका देखता हूँ मेरे पास है पीपीटी की नहीं, बना हुआ तो होगा। इनफ्लोरेसेंस का नहीं है तो लिखना पड़ेगा आपको। Yes, sir. तो इसके जनरली दो टाइप होते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। Racemose and Cymose. हाँ, रेसिमोज एंड साइमोज। रेसिमोज एंड साइमोज। अब रेसिमोज के भी डिफरेंट टाइप होते हैं और साइमोज के भी डिफरेंट टाइप होते हैं। तो पहले हेडिंग में देंगे रेसिमोज। अल्टरनेटली इसको बोल सकते हैं इनडिफिनिट। डिफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट। ये एक्रोपिटल फैशन में काम करता है। एक्रोपिटल यू नो, एक्रोपिटल मतलब सेंटर के ऊपर बढ़ते जाएगा सीधे सीधे। एक्रोपिटल स्टार्टिंग, दैट इज कॉल्ड एक्रोपिटल। The main axis continue to grow and does not terminate into flower on the bone laterally in the acropital phase. ये मेन एक्सिस है
तो ये सीधे सीधे बढ़ते जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। तो इन दिस टाइप क्या होता है, इन दिस टाइप इनफ्लोरेसेंस the main axis continue to grow and does not terminate in a flower. And flowers are born laterally in the acropetal order. यदि फिजिक्स के बारे में भाषा में बोले तो सेंट्रीपिटल टाइप, समझ में आया? मतलब जो मेन फ्लावर है वो सेंटर की तरफ आएगा और जो यंग फ्लावर है वो अपर साइड में आ जाएगा टुवर्ड सेंटर। और साइमोज कैसा होगा, अवे फ्रॉम सेंटर, वो होगा बेसिपिटल टाइप। समझ में आया? जैसे मैं बेसिपिटल समझाऊं आपको, जैसे ये मेन एक्सिस है, ये टर्मिनेट कर जाएगा ऐसे, तो फ्लावर कहाँ बोर्न होगा, इधर। ठीक, ये टर्मिनेट कर जाएगा, फ्लावर बोर्न क्या होगा, इधर। तो ये लेटरल जाएगा ऐसे, और ये कैसे जाएगा, एक्रोपिटल। तो ये रेसिमोज है, ये साइमोज। समझ में आया? नहीं आया? ये टर्मिनेट कर गया मेन एक्सिस, अब ये टर्मिनेट कर गया मेन एक्सिस, तो फ्लावर बोर्न यहाँ लेटरल की तरफ जाएगा, बूसिंग टाइप ऐसे ऐसे। समझे? जैसे मैं बताऊं, जैसे टी गार्डन होता है, चाय का बागान, टी गार्डन, तो वहां पे जो गर्ल्स होती है वो क्या करती है, जो टिप ऑफ द लीव्स है उसको तोड़ती है, सो दैट उसकी लेंथ नहीं बढ़े, उसके क्या बढ़े, विड्थ, सो दैट ज्यादा बुश होगा, और जितना ज्यादा बुश होगा उतना ज्यादा चाय के पत्ते लगेंगे। यदि उसकी लेंथ बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, पत्ते टूट जाएंगे। इसलिए इस तरह से ये लेंथ वाला क्या हो गया, एक रेसिमोज, और जो विड्थ वाला क्या हो गया, साइमोज। क्लियर? हाँ, तो विड्थ वाला जो हो गया साइमोज हो गया। इसको रब कर देते हैं। अब इसमें साइमोज लिखिए आप, साइमोज का इसका अपोजिट लिखना है, वो डेफिनिट हो गया, ये इनडेफिनिट था, तो साइमोज दैट इज कॉल्ड डेफिनिट। मतलब क्या है इसमें, टर्मिनेट कर जाएगा। हाँ, डिटर्मिनेट कर जाएगा, एग्जैक्टली राइट। दिस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस
मेन एक्सिस टर्मिनेट इन द फ्लावर, मेन एक्सिस फ्लावर में तब्दील हो जाएगा, तो उधर फ्लावर जाएगा नहीं फिर इनटू द फ्लावर, तो लेटर साइड डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड साइमोज। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं साइमोज। तो ऐसे ऑर्डर को बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर को क्या बोलेंगे, बेसिपिटल ऑर्डर सक्सेशन। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल टाइप, राइट। सेंट्रीफ्यूगल टाइप। तो इसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल, मतलब जो ओल्डर फ्लावर अपर साइड होगा और यंगर फ्लावर लोअर साइड, अवे फ्रॉम द सेंटर है, अवे फ्रॉम। ओल्डर फ्लावर यंगर फ्लावर क्या बोले? जो पहले फ्लावर आया है ओल्डर फ्लावर प्रेजेंट इन अपर साइड, ऊपर की ओर, और जो यंगर फ्लावर जो बाद में आया वो टुवर्ड्स द बेस। तो जो जैसे ये है, ये टर्मिनेट जो फ्लावर है, ये तो अपर साइड हो गया, कौन सा फ्लावर है ये, ओल्डर फ्लावर। और जो ये टर्मिनेट कर गया तो फ्लावर जो यंग फ्लावर है वो लोअर साइड आ गया ना। तो ओल्डर फ्लावर अपर साइड और यंगर फ्लावर्स लोअर साइड, ये इसका कंसेप्ट है। अब इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं, मतलब ये तुम्हारा रेसिमोज के भी कुछ डिफरेंट टाइप होते हैं, वो हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेसिमोज क्या होता है। That is receive. Receive. तो ये अब याद रखना, जो इन्फ्लोरेसेंस के जो स्टॉक होते हैं उसको हम बोलते हैं पेडंकल, और जो फ्लावर के एक्सिस होते हैं, सॉरी स्टॉक होते हैं, उसको बोलते हैं पेडिसिल। तो पेडंकल क्या होते हैं, स्टॉक ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, इसमें कहीं पे लिख लेना स्टॉक ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, कहीं पूछा हुआ है स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। रिसीव तो क्या है, इन दिस type of inflorescence peduncle is elongated. अब इसमें देख सकते हो एग्जाम्पल कैसे कैसे होता है, इस तरह से है। तो फर्स्ट फ्लावर, सेकेंड फ्लावर, थर्ड फ्लावर, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। इसको रेसिम बोलते हैं। एग्जाम्पल रेसिम का पूछेगा पेपर में,
तो बताना मस्टर्ड, एंड रेडिश, मूली। इसका दूसरा टाइप होता है स्पाइक। स्पाइक इन दिस टाइप क्या होता है? पेडंकल नहीं होता। पेडंकल इज इलोंगेटेड। हाँ, ओ होता है, क्या नहीं होता है? पेडंकल होता है। पेडंकल, हाँ पेडंकल इज इलोंगेटेड तो होगा, बट पेट्यूल नहीं होगा, जिसको मैंने अभी टर्म दिया था, फ्लावर आर सेसाइल विदाउट पेडिसिल नहीं, हाँ, बट फ्लावर आर सेसाइल, फ्लावर आर सेसाइल, फ्लावर्स आर सेसाइल। एग्जाम्पल है इसका एक्रांथस, एक्रांथस, एक्रांथस। इसी में होता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, इसी में, इसी के अंदर लिखना स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। इसका एग्जाम्पल पूछेगा, बताना ग्रास फैमिली में कोई सी, व्हीट ग्रास, जितने भी ग्रास फैमिली है, लाइक राइस, व्हीट, सारे इसके अंदर है। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। अब है इसका कैटकिन। कैटकिन तो नाम सुना होगा, बिल्ली की पूंछ ऐसा। कैटकिन कैसा हाँ। होगा? बिल्ली का पूंछ बना दो, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कैटकिन का? बहुत फेमस है, जिसको आप खाते हो। मलबेरी। यस, मलबेरी, सहतूत, ये होता है कैटकिन, बिल्ली के पूंछ ऐसा। फोर्थ होता है, सारा का सारा अभी रेसीम चल रहा है, रेसीमोज, याद रखना। एस्पेडिक्स, इसमें क्या होता है, पेडंकल थोड़ा सा ठीक होगा, पेडंकल ठीक हो जाएगा। लॉन्ग एंड फ्लैशी, इसके पास ग्रीन कलरफुल स्पेट होते हैं, स्पेट जिसको बोलते हैं ग्रीन
ग्रीन कलरफुल ब्रेक्ट जो बताया आपको, उसको बोलते हैं स्पेथ। और ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, पता ही है, ये होता है मीज में। किसमें? मीज में। मेज। मीज, यस, मीज में। और ऑल्सो यू कैन राइट इन बनाना केस में भी आपको दिखेगा। तो मीज एंड बनाना कर देता हूँ। एस्पेडिक्स। अब है कोरियम, कोरिम। फिफ्थ पॉइंट, कोरिम। अब मान लो कि ये बनाया आपने और सब एक लेवल पे आएगा। समझ में आ रहा है? पेडंकल। नीचे से जितना भी, हाँ, पेडंकल जो है सारा का सारा शॉर्ट होगा, बट फ्लावर प्रेजेंट इन सेम लेवल। देख रहे हो, सब सेम लेवल पे है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बट सेम लेवल पे आता है। इसको कोरियम बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका लिख लें आप। ये होता है कैंडी टफ्ट में। अब एक है अम्बेल, अम्बेली फेरी फैमिली होता है, छाता ऐसा होगा, तो इसका नाम ही अम्बेल है। इसको कैसे बनाएंगे आप? छाता बना देना है। इसका नाम अम्बेल है। तो फैमिली अम्बेली फेरी किस किस में होता है? तो होता है फेनल, फेनल समझते हो ना, सोप बोलते हैं। कोरिएंडर, सोप, सोप जिसको खाते हैं आप, सोप, फेनल बोलते हैं, फेनल, सोप, क्यूमीन, जीरा, इस सब में ऐसा होता है। अब है हेड, स्पेशल जो बड़ा सबसे स्टैंडर्ड टाइप होता है हेड या कैपिचुलम। ये बार बार पूछेगा आपसे, ये हेड होता है। और इसका फेमस एग्जांपल है सनफ्लावर, इसको बोलते हैं कैपिचुलम। इसको बोलते हैं हेड। बड़ा साइड होता है जिसमें डिस्फोलेट और रेफोलेट होता है। सनफ्लावर में होता है डिस्फोलेट और रेफोलेट, तो पता ही है। एग्जांपल किस क्या लिखेंगे आप? मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसेस आपसे पूछेगा, तो बताना सनफ्लावर। कौन सा? तो कैपिचुलम, मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसेस। हाँ, सनफ्लावर। मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड भी ऐसा ही होता है लगभग, गेंदे के फूल में ऐसे ही। तो पूछेगा मोस्ट एडवांस इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है? मोस्ट एडवांस टाइप, तो कैपिचुलम। ये हो गया आपका सारा का सारा टाइप रेसिमोज का टाइप।
अब आ जाते हैं हम लोग, साइमोज के भी 3 टाइप्स होते हैं, मोनोकेजियल, बाइकेजियल एंड मल्टीकेजियल। द टाइप्स ऑफ साइमोज। टाइप्स ऑफ साइमोज। फर्स्ट है यूनिपेरस काइम या मोनोकेजियल काइम। इसमें क्या होता है जनरली, द पेडंकल ending in a flower producing one lateral branch। इसके एग्जाम्पल लिख लो आप। एग्जाम्पल इज द बेगोनिया, सेकेंड वन ड्रोसरा, ड्रोसरा। समझ में आया? ड्रॉस क्या? ड्रोसरा, पेडंकल एंडिंग इन दी फ्लावर प्रोड्यूसिंग वन लेटरल साइड, एक ही साइड में होगा, तो वन लेटरल साइड होगा तो हो गया यूनिकेजियल या मोनोकेजियल। अब दोनों साइड पे होगा तो उसको बाइकेजियल बोले। तो सिंपल है ये, दिखाता हूं मैं फिगर में बाइकेजियल होगा कैसे। वेरी सिंपल इट इज। बाइपेरस काइम ऑब्लिक डाइकेजियल काइम। कैसे होगा देखते हैं हम लोग। ये मान लो कि टर्मिनेट कर गया फ्लावर, फर्स्ट है। अब ये टर्मिनेट कर गया, ये दूसरा फ्लावर आया ऐसे, इधर ये टर्मिनेट कर गया, ये दूसरा आया, दोनों साइड में है, बोथ लेटरल साइड में है, इसलिए इसका नाम बाइकेजियल है। समझ में आ गया होगा क्या बोला मैंने? In this type of inflorescence, peduncle in a flower and basal part of peduncle two lateral branches। इसके 2 lateral branch होते हैं, इसलिए इसका नाम है बाइपेरस टाइप। एग्जाम्पल लिख लें इसमें। Peduncle ends in a flower और क्या? Peduncle ends in a flower and from the basal part of the peduncle two lateral branches arise which also in a flower। एग्जाम्पल है बोगनवेलिया एंड जैस्मीन।
थर्ड टाइप multiparous chyme oblique polycagial तो मोर देन 2 लेटर ब्रांचेस जाएंगे और ईच बियर फ्लावर्स समझ ही गए हो गया मल्टीपेरस है ना। तो इसका एग्जांपल लिखो केलोट्रोपिस। केलोट्रोपिस तो ये हो गया। फर्स्ट टाइप है रेसिमोज, दूसरा टाइप है साइमोज, थर्ड 3 स्पेशल टाइप होता है। इसको हम साइथियम बोलते हैं, भर्ती लास्टर बोलते हैं और हाइपेंथोडियम बोलते हैं। तो ये कल की क्लास में करेंगे, है ना। इशारा आप करके आना। लीप का क्वेश्चन दूंगा मैं और फ्लावर का क्वेश्चन, हाँ लीप एंड फ्लावर के क्वेश्चन, ठीक है, करके आना। ठीक, यस सर। ओके। और कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, अभी नहीं। ठीक है, कल करके आना बेटे। थैंक यू सर। क्वेश्चन सारे नोट कर लेना, डाउट पूछ लेना कल, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों चैप्टर से आए। ठीक है, ओके। यस सर।